Hello everyone. Today we are going to start class 10th mathematics right from chapter number 1. In coming days you might be going to face your periodic exams, right? So this video will help you in solving questions that are based on chapter number 1. In chapter number 1, first exercise is based on fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic illustrates that any composite number can be expressed in the form of the product of its prime factors, and this prime factorization is unique irrespective of their order, which means किसी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है, और इसमें फैक्टर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, फैक्टर्स आगे पीछे हम शिफ्ट कर सकते हैं. गॉट इट? सो दिस इज योर थ्योरेटिकल अप्रोच based on fundamental theorem of arithmetic, and now we will apply fundamental theorem of arithmetic to find solutions. And the concept which is based on fundamental theorem of arithmetic is finding LCM and HCF of given numbers, which you have also studied in lower classes, but here in class 10th we will apply only only prime factorization method, right, to calculate the HCF and LCM of the given numbers. So here is your first question of exercise 1.1. Express each number as a product of its prime factors. आपको 5 पार्ट्स गिवन है, इन 5 पार्ट्स में हर एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स आपको क्या करने हैं, मेंशन करने हैं. तो in question number 1, first part given as 140. Find prime factors of 140 by prime factorization method. 2 7 ja 14 0, 2 3 ja 6, 2 5 ja 10. Now it is divisible by 5. 5 7 ja 35 and 7 1 ja 7. So 140 can be written as 2 into 2 into 5 into 7, which can be further written in exponent form as 2 is multiplying 2 times, क्योंकि 2 दो बार मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको हम 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 भी मेंशन कर सकते हैं, एंड दिस इज योर आंसर. इट्स वेरी सिंपल. जस्ट यू हैव टू डिवाइड द गिवन नंबर by which it is divisible and then express in the product form. Next is we are going to solve its third part, and thereafter all the remaining parts you have to try at your home. 3 8 2 5. 3 8 2 5. Again we have to find its prime factors. So mention 3 8 2 5. Unit digit is 5. So it is divisible by 5. It can be divisible by 3. First we will check it. 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, remainder is 2, 2 and 2 22, 3 7 ja 21, remainder is 1, 3 5 ja 15. ये तो 3 से डिवाइड हो गया, ये 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं आप. ओके, अगेन 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये फिर से डिवाइड हो गया है, बट नाउ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो वी विल डिवाइड इट बाय 5, क्योंकि यूनिट डिजिट कितनी है, 5. 5 8 जा 40, रिमाइंडर इज 2 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, रिमाइंडर इज 3, 3 and 5 35, 5 7 ja 35 and 17 1 ja 17. So this is the prime factorization of 3 8 2 5. Now express its prime factors as the product in product form. So we can write 3 8 2 5 as 3 into 3, then 5 into 5, then 17, or
बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अगर 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है इट कैन बी रिटन एज 3 की पावर 2, 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है इट कैन बी रिटन एज 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 17, and this will be your required answer. This is the prime factorization of 140 and 3825. Now try remaining parts at your home, and we are moving on to second question. Now question number 2, first part. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiply HCF is equal to product of two numbers. हमें LCM और HCF फाइंड करना है गिवन नंबर्स का, और उसके बाद फॉर्मूला भी हमें वेरीफाई करके दिखाना है, ठीक है। और फॉर्मूला भी आपको क्वेश्चन में मेंशन है, आपको ये फॉर्मूला याद भी करना है। गॉट इट? फर्स्ट पार्ट इज 26 एंड 91। हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ये बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो ये उसका एप्लीकेशन है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक प्राइम फैक्टर्स में डील करती है, इसलिए पहले हमें 26 और 91 के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने होंगे। 26 डिविजिबल बाय 2 and 13 is divisible by 13 only because it is a prime number. 91 it is divisible by 7, 7 1 is 7, remainder is 2, 21, 7 3 is 21, and now 13 is a prime number, तो 13 तो सिर्फ 13 के टेबल में ही आएगा। Now mention the prime factors of 26. 26 can be written as 2 into 13, और 91 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 into 13। हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो दोनों के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन है, जो 26 के प्राइम फैक्टर्स में भी आता है और 91 के प्राइम फैक्टर्स में भी आता है। तो ये 13 है जो दोनों में है, कॉमन है, और वो 13 यहां पर भी वन टाइम ही आया है और 13 यहां पर भी वन टाइम ही आया है, इसलिए एचसीएफ तो हो जाएगा 13। इट इज योर आंसर। सेकेंड वी हैव टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम जब हम कैलकुलेट करते हैं तब हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स कंसीडर नहीं करते, एलसीएम में हमें सारे के सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है। एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, एचसीएफ में सारे फैक्टर्स लेते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास? 2, 7 और 13। तो 2 भी आएगा, 7 भी आएगा और 13 भी आएगा। हमने क्या किया? हर एक फैक्टर को मेंशन कर दिया, इनकी मल्टीप्लाई भी करनी है, मल्टीप्लाई भी कर दी। अब हम देखेंगे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है। 2 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 2 वन टाइम आएगा। फिर हम चेक करेंगे 7 की हाईएस्ट पावर, वो भी 1 है क्योंकि 7 आया ही एक ही बार है, तो 7 भी वन टाइम में लिखा जाएगा। और यहाँ पर 13 की पावर भी 1 है और 13 की पावर भी 1 है। दोनों ही नंबर्स 26 और 91 इनके प्राइम फैक्टर्स में 13 वन टाइम ही आया है, तो 13 की मैक्सिमम पावर 1 हो गई, तो 13 भी हम वन टाइम ही मेंशन करेंगे। और अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई 13। 14 और 13 की मल्टीप्लाई आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। 14 हम इसको लिख सकते हैं 10 + 3, तो 14 10 जा तो हो जाएगा 140 और 14 3 जा 42, तो आंसर विल बी 182। 182 is your LCM. So we have calculated LCM and HCF. Now second part. In second part we have to verify. क्या वेरीफाई करना है? फॉर्मूला वेरीफाई करना है। कौन सा फॉर्मूला? Its second part is verify that LCM multiply HCF is equal to product of the two numbers is equal to product of the two numbers। अभी अभी हमने एलसीएम कैलकुलेट किया है 182 की वैल्यू पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई एचसीएफ हमने कैलकुलेट किया है 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब वो दो नंबर कौन कौन है? 26 और 91।
26 मल्टीप्लाई 91। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में लिखेंगे, एंड देन वी विल चेक वेदर द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। गॉट इट? कीजिए मल्टीप्लीकेशन। So after multiplication we are getting it as 2366. So LHS left hand side is equal to RHS right hand side, hence verified. All the remaining parts of this question will be solved by the same method. So try the remaining parts at your home, and we will do question number 3. First part of question number 3. 12, 15 and 21. हमें LCM और HCF कैलकुलेट करना है, और उसके बाद अच्छा इसमें वेरीफाई करने के लिए नहीं कहा है, ठीक है। सिंपली वी हैव टू फाइंड इट्स LCM एंड HCF। तो LCM और HCF आप तभी फाइंड कर पाएंगे जब आप इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट द प्राइम फैक्टर्स। 12 डिविजिबल बाय 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 15 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, क्योंकि 5 तो प्राइम नंबर है, 5 सिर्फ 5 के टेबल में आएगा। 21 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, क्योंकि 7 भी एक प्राइम नंबर है, वो किसी और नंबर में से डिवाइड नहीं होगा। तीनों के प्राइम फैक्टर्स को लिस्ट करो। लिस्ट ऐसे करते हैं, 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 टाइम्स आया है इसलिए इसको मेंशन कर देंगे 2 की पावर 2 इंटू 3। देन 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, मैं लिख रहा हूं 5 इंटू 3 ताकि सेम प्राइम फैक्टर के नीचे सेम प्राइम फैक्टर आ जाए और आपको HCF कैलकुलेट करने में इजी हो जाए। 21 7 इंटू 3, तो 7 में पहले लिखूंगा, 3 में लिखूंगा बाद में। ऐसा इसलिए किया, अब मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि 3 इज द कॉमन प्राइम फैक्टर और मेरा HCF भी 3 ही होगा, अभी आपको बताया था। सो HCF इज इक्वल टू 3। तीनों, अगर हम 3 नंबर का LCM या HCF फाइंड करना चाह रहे हैं तो HCF वो होगा जो तीनों नंबर में आ रहा होगा, और तीनों नंबर में आ रहा होगा और उसकी पावर लेंगे छोटी पावर। जैसे अभी तो तीनों में सेम पावर आ गई 1 1 1। अगर सपोज यहाँ पे 3 की पावर 2 होती, 3 स्क्वायर, तो फिर 3 स्क्वायर LCM में हम कंसिडर करेंगे, हम HCF में क्या कंसिडर करते, छोटी पावर। गॉट इट? So if you are having any doubt regarding HCF and LCM after watching this video, so comment your queries and I will be back to you by a short video by clearing your doubt. Got it? So HCF is equal to 3 and LCM will be equal to, LCM के लिए मैंने अभी बताया था आपको कि सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लो जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 है, 2 के बाद कौन आया 3, 3 के बाद आया 5, 5 के बाद 7, सबको मेंशन कर दिया, सबकी मल्टीप्लाई भी करनी है, मल्टीप्लाई कर दो। अब एलसीएम में हर एक प्राइम फैक्टर्स की मुझे सबसे बड़ी पावर कंसीडर करनी है। पहले मैं स्टार्ट करूंगा 2 से, 2 की पावर 2 है और दोबारा 2 आया ही नहीं है, तो यहां पर 2 की पावर 2 रेज़ टू द पावर 2 कंसीडर होगा। 3 तीनों ही जगह 3 की पावर 1 है तो यहां पर 1 ही रहेगी। फिर 5 है 1 टाइम और 7 है 1 टाइम, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू 3 60, 6 7 जा 42, 420। So this is your LCM and it is your HCF. Now try the remaining parts by yourself in your homework. In question number 4, given that HCF of 306 and 657 is equal to 9 and LCM of 306 and 657 we have to calculate.
तो हमें HCF गिवन है और दोनों नंबर भी गिवन है। इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों नंबर का HCF 9 है और इन दोनों नंबर का LCM हमें फाइंड करना है। अप्लाई द फॉर्मूला, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM हमें फाइंड करना है, तो LCM को LCM ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई HCF हमें गिवन है 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 306 मल्टीप्लाई 657। तो LCM विल बी इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9, क्योंकि 9 LCM इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जब हम 9 को ट्रांसपोज करेंगे तो वो डिवीजन में आएगा। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट इट। 9 306 बोथ आर डिविजिबल बाय 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6। 3 से फिर से डिवाइड हो रहा है, कैसे? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। वी आर गेटिंग 34 मल्टीप्लाई 657। मल्टीप्लाई and get your answer and check the results from your answer sheet. So after multiplication we are getting it as 22 338. Move on to next question now. In question number 5, check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. हमें करना क्या है, पहले समझ लीजिए। हमें एक नंबर गिवन है 6 रेज टू द पावर n। हमें चेक करना है कि जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो क्या उसकी जो यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट आएगी वो क्या 0 हो सकती है। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सॉल्यूशन, 6 raised to the power n can be written as 2 into 3 raised to the power n। भाई 6 क्या होता है, 2 into 3। हमने 6 के क्या किए, हमने 6 के प्राइम फैक्टर्स कर लिए हैं जो इक्वल आए हैं 2 into 3। 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आया, 3 आया, लेकिन 5 नहीं आया। अब क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं आता तो हम कह देंगे कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। 2 पॉइंट लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, सिंस, या आप इसको और सिंपल बना लीजिए, और सिंपल, जितना सिंपल बनाएंगे उतना आपके लिए इजी होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। फर्स्ट पॉइंट इज प्राइम फैक्टर्स of 6 are 2 and 3। 6 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है, 2 and 3। सेकंड पॉइंट, it does not have 5 as its prime factors। इसके प्राइम फैक्टर में, 6 के प्राइम फैक्टर में 5 है ही नहीं। 2 पॉइंट हो गए। ये दोनों पॉइंट लिखने के बाद बस लास्ट लाइन आ गई। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, सो या देयरफॉर, ये लिखना जरूरी है। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और इसके बाद आप क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वही कॉपी कर दीजिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज है 6 रेज टू द पावर n, कैन के बाद नॉट इंसर्ट कर देना। सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 रेज टू द पावर n कैन नॉट, बस हमने ये कैन नॉट लगा दिया, कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 for any natural number n।
for any natural number small n, hence proved। इस क्वेश्चन को लेकर एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों के मन में कि इसकी लैंग्वेज कैसे याद करें। सुन लीजिए ध्यान से। मेन प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन इज हाउ टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बताओ इसकी लैंग्वेज को याद करना कोई मुश्किल काम है? फर्स्ट लाइन में आपने लिख दिया कि 6 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 और 3, और सेकंड लाइन में आपने लिख दिया 6 के प्राइम फैक्टर में 5 है ही नहीं। क्या ये मुश्किल है? ये तो मुश्किल नहीं है। और उसके बाद जो थर्ड लाइन है ये तो हमने कहां से कॉपी कर दी? ये हमने क्वेश्चन से ही कॉपी कर दी। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सिर्फ हमने एक वर्ड ऐड किया है और वो क्या है? थ्योरम का नाम। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसके बाद ये जो दोनों लाइंस हैं ये हमने फिर से क्वेश्चन से कॉपी कर दी। सो दिस क्वेश्चन इज नॉट सो हार्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस और for your periodic examinations. One more example is given to you in your book. I think it is 4 raised to the power n. So try this at your home. Got it? So let x is equal to 7 into 11 into 13 plus 13. We have to show it is a composite number. What will you do here? 13 दोनों जगह है। टेक 13 कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट? 7 इंटू 11। 13 हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, सो वी विल गेट +1 ईयर, क्योंकि 13 वी हैव ऑलरेडी टेकन कॉमन। नाउ सिंप्लीफाई। 13 मल्टीप्लाई 11 7 जा 77, 77 + 1 इट विल बिकम 78, राइट। अब 78 के प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 and 13 1 जा 13. So here we can write it as 2 into 3 into 13. How many factors? There are more than 2 factors, hence it is a composite number. 13 into 13 can be written as 13 square into 2 into 3. Clearly x has more than 2 factors. There are 3 factors, 13 and 2 and 3. So more than 2, that is why it is a composite number. So it's a composite number. Answer. Move on to its second part. Given let this number is equal to y. Y is equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. We have to check this number is a composite number or not. दोनों नंबर में सबसे पहले क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें? 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ पर भी है। 5 को कॉमन ले लेते हैं। 5 को कॉमन लेने के बाद whatever will be remaining part will be written in the bracket. 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 है, 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1। 5 into इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 7 6 जा 42, मल्टीप्लाई 24 प्लस 1। Whatever will be coming here, it will be a multiple of 5. या तो आप यही कह सकते हैं hence it is a composite number, और प्रीवियस पार्ट की तरह जो नंबर आएगा इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आप उसके प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे और प्राइम फैक्टर्स को फिर मेंशन करेंगे कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो मल्टीप्लाई करिए 42 और 24 की। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी आर गेटिंग इट एज 1009 multiply by 5. So clearly this number is a multiple of 5. So it will contain more than 2 factors. So it is a composite number. So y will contain more than 2 factors
So it's a composite number answer. Move on to seventh question. In question number 7, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field and Ravi takes 12 minutes for the same purpose. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Okay, will they meet again at the starting point? कि जहां से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था वो वापस राउंड कंप्लीट करने के बाद वापस कितने मिनट बाद मिलेंगे? इन दिस सेंस वी व्हाट वी थिंक कि हम चाहते हैं कि वो मिनिमम टाइम के बाद वापस मिले. ठीक है, दो लोगों ने एक साथ एक राउंड लेना स्टार्ट किया. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन? सो वी विल थिंक कि आफ्टर हाउ मेनी मिनिमम मिनट्स दे विल मीट अगेन, कम से कम कितने टाइम बाद वो मिलेंगे. और जब कम से कम या मिनिमम की सेंस आती है, वी फाइंड देयर एलसीएम बिकॉज द एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. Right? Whenever we are getting the sense of minimum, we find LCM, and whenever we are getting a sense of maximum, we find the HCF. So clearly find the LCM of 18 and 12. Question number 7. Find the LCM of 18 and 12. So find prime factors of 12. 2 6 ja 12, 2 3 ja 6, and 3 1 ja 3. Then we have 18. 2 9 ja 18. 3 3 ja 9, 3 1 ja 3. List the multiples. 12 can be written as 2 square multiplied by 3. 18 can be written as 2 into 3 square. So its LCM will be, in LCM we list all the multiples. We have 2 and we have 3. 2 into 3. Highest power of 2 is 2 and highest power of 3 is 2. 4 multiply 9, 36 minutes. So Sonia and Ravi will meet after 36 minutes. Therefore Sonia and Ravi will meet each other at the starting point after 36 minutes. Answer. That's all for today in this session. In our next video we will contain solutions of exercise 1.2. Till then keep watching more videos. Thank you.